تو السلام علیکم ونس اگین. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مصفیات کا کیا نظریہ ہے یونانی میں. صرف مصفیات نہیں، جب ہم ہمارے یونانی پدی میں یعنی کہ ہماری پی اومس ڈگری کے ٹائم پہ یا وقت میں ہم لوگ جو پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایک ٹاپک تھا اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجی. تو ہم لوگ وہ عربی ٹیچر کے ذریعے رٹ کے رکھے تھے کہ what is Musafi, what is Abis, what is Kabis, what is Munzij, what is Musil, what is Mukawwi. یہ چیز ہم نے رٹ کے کیونکہ وہ سب خالص عربک ورڈ تھا. وہ چیز کو ہم نے رٹنے کی کوشش کی اور رٹ کے ہم نے ایگزام بھی پاس ہو گئے. ہماری یونانی ٹرمینالوجی ایکچولی ایک بحر ہے، ماڈرن کی ایسے نہیں. ماڈرن میں اگر انالجیسک اگر کہہ دیا تو انالجیسک ہے، اور کچھ لوگ اس کی کیا پیتھوفیزیولوجی یا اس کی فارموکوکائنیٹکس پہ جاتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یونانی کی جو اصطلاحات ہے اس میں پوری کی پوری فلسفی چھپا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کیے، مقوی اعصاب، مغلظ منی، ممسک، محرک، مسکین، ملطیف، مجفیف، یہ کچھ ٹرم یاد رکھنے کی وجہ سے ہم آگے جانے کی کوشش نہیں کی. تو اس میں سے ایک واسٹ ٹرمینالوجی تھا مصفی خون. تو ہم لوگ اگر کوئی اسکن ڈیزیز آ گیا یا کوئی دوسرا خون کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین مصفی خون ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عناب یہ مصفی خون ہے، شاہترہ مصفی خون ہے، سرپوں کا مصفی خون ہے، چوپچنی مصفی خون ہے، نیم مصفی خون ہے، مہندی مصفی خون ہے، ہلدی مصفی خون ہے، سندل مصفی خون. پوری 100-150 دوا کو ہم نے مفرات میں رٹ کے رکھی، کیا کیا مصفی خون ہے، کیا کیا مصفی خون ہے، کیا کیا مصفی. ٹھیک ہے، ہماری نظریے کے حساب سے ہمارے پاس ایک بہترین انسٹرومنٹ ہے خون کو صاف کرنے والے. ہمارے تم کبھی ماڈرن میڈیسن کو سائنس کے جو اعتبار سے ماڈرن میڈیسن سے یا ماڈرن میڈیسن جاننے والے ڈاکٹر سے ایک سوال پوچھ کے دیکھو. سب چیز کا تو ان کے پاس دوا ہے نا. آپ لوگ کے پاس مصفی خون کی کنسپٹ کیوں نہیں، یا مصفی خون کی دوا کیوں نہیں؟ تو تب فوراً لوگ پوچھیں گے واٹ ڈو یو مین بائی مصفی خون. تو ہم لوگ بولیں گے خون کو صاف کرنے والے ورڈ میں اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے، ورڈ میں معنی ہے. مصفی خون بلڈ پیوریفائر از اے کامن ورڈ. یہ میڈیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے. مصفی خون بلڈ پیوریفائر. تو اگر کوئی پڑھے لکھے آدمی یا ڈاکٹر یا کوئی انسان ہم سے پوچھے ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈز اٹ دس مصفی خون واک ان دا باڈی، یہ باڈی میں کیسے کام کرتے، تھوڑا بھی پڑھے لکھے آدمی، زیادہ نہیں، کیا جواب رہے گا؟ نہیں وہ گندے خون کو صاف کرتا ہے، جو گندگی خون سے نکالتا ہے باڈی سے. کون سی گندگی کو؟ یا ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ کیا اچھا وہ جھاڑو مارتا ہے کیا خون کو، یا چھنتا ہے کیا، یا اس کو لال خون کو تھوڑا لالی کم کرتا ہے کیا، یا خون کی گرمی کو تھوڑا برف کے طرف لے کے آتے کیا، یا برفیلی خون کو گرمی کے طرف لے کے ہوتا کیا؟ کتنے بھی بڑے حکیم رہن دے، نہیں وہ اس کی خاصیت ہے اس دوا کی، اس لیے وہ اپنا کام کرتا ہے. بس اس سے آگے ہم بول ہی نہیں سکتے. ایکچولی واٹ از مین بائی ورڈ مصفی خون؟ وہ کہاں سے تصفیہ کی ضرورت کیوں پڑ رہا؟ ہم نے ایک ورڈ پڑھے تھے فزیولوجی میں، ہومیوسٹیسس، یعنی کہ اعتدالی حالت، باڈی کی انٹرنل انوائرمنٹ. یہ صرف اعتدالی حالت یا آپٹیمم لیول صرف یونانی کی کنسپٹ نہیں ہے، آیورویدک والے بھی، ہومیوپیتھی والے بھی، ماڈرن والے بھی،
نیچروپیتھی والے سب مانتے ہیں باڈی کو ہمیشہ اعتدال میں رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی ہے الخیر من اعتدال. تمہاری خیر اعتدال میں, تمہاری برکت اعتدال میں. تم ایکسٹریم میں مت جاؤ. تمہاری بی پی اگر اعتدال میں ہے تو وہ برکت ہے. کسی اگر تم کو دعا دے دیا اللہ تمہاری پریشر میں برکت دے تو برکت بڑھ جائے گی. کہ ہمارا کنسپٹ کیا برکت سے بڑھنا. اللہ تمہاری شوگر میں برکت دے خون کی, تو تمہاری خون اعتدال میں رہے. وہ چاہے 400 500 نہ جائے اور نیچے بھی نہ جائے, دونوں بری حالت. تو اعتدال کی حالت ہے نعمت کی حالت. اس میں ٹیکس کم رہتا ہے. جتنا ہم دنیا میں اعتدال سے ہٹیں گے اتنا ہم کو ٹیکس بھرنا پڑتا ہے, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. جو آدمی سیدھا سیدھا جیتا ہے اس کو زیادہ فائن بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر تم دبئی جا کے ڈرائیونگ کر کے دیکھو یہاں کے جیسے ڈرائیونگ, ایک دن تم کو شاید 20-25 درہم فائن بھرنا پڑے گا. 20-25 درہم بولے تو 25,000 درہم بولے 2-3 لاکھ روپے. تم اگر گاڑی چلا رہے زیادہ ہارن نہیں بجا سکتے, تم ٹرافک کی تھوڑا بھی آگے گیا ایک لائن بھی, تمہارا کو وہیں کہ بھائی گھر پہ آ جائیں گے رپورٹ فائن. تم بولے کہ میں نہیں چلا ہے, تمہاری فوٹو کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ جس مقام جس ایریا میں سگنل پہ آپ کے سب فوٹو آپ کے گھر پہ آئیں گے, فائن بھر ڈال. جو آدمی لائن سے 7 لائن کی جو ہائی وے ہے اعتدال سے اپنے لائن پکڑ کے گاڑی چلا رہے تو کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ آڑا تیڑا زگ زیگ چلاتا ہے, یہ پیچھے والوں کو ٹھوکیں گے آگے والے کو بھی ٹھوکیں گے. تو یہ دنیا کی ایک دستور ہے, دنیا کی ایک اصول ہے. جو آدمی اعتدال میں رہیں گے اس کو کم سے کم ٹیکس بھرنا اس دنیا میں اس دنیا میں. ہم لوگ اعتدال سے بہت بعید بہت دور چلے گئے, یا تو پازیٹیو کی طرف بہت آگے چلے گئے یا نیگیٹو کی طرف. زیرو پہ رہنا نہیں آتی, زیرو پہ نہیں رہنا, یا تو مستقل میں چلے جائے گا یا فاسٹ میں. تو یہاں خون کا بھی ایک اعتدالی حالت ہے. اس کو ہم صاف خون بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار سے صاف خون یعنی جس میں گندگی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کی خون کی پی ایچ بیسیکلی ہونا چاہیے 7.4 سم تھنگ. یعنی خون اگر کوئی منہ میں لگا کے دیکھو, خون تھوڑا سا شیرین ہے, میٹھا ہے, الکلائن ہے. اگر وہ زیادہ الکلائن کی طرف گیا تو بھی خون گندا ہو گیا. زیادہ ایسیڈک کی طرف گیا یوریمیا تو بھی وہ ایشو ہے, کیونکہ وہ مور ایسیڈک کی طرف گیا, وہ بھی آپ کو پرابلم. خون میں زیادہ مقدار میں گاڑھا پن کے پر چلے گیا, غلظت کولیسٹرول یا کچھ بھی ہو تو بھی خون گندا ہو گیا. خون آپ کی صفرا کی وجہ سے خون زیادہ پتلا ہو گیا تو بھی طبی اعتبار سے آپ کا خون گندا ہو گیا. یا آپ کی خون کی حدت بڑھ گیا تو بھی آپ کی خون کے اندر یہ آ گیا, خرابی آ گیا. یا خون ٹھنڈا ہو گیا تو بھی خرابی آ گئی. خون ایکچولی دو قسم کی چیز ہم جو اکثر کنفیوژن ہوتا ہے. خون ایک الگ چیز ہے, خلتے خون الگ ایک چیز ہے. خلتے خون اخلاق میں آتے, خون پوری مجموعی حالت کو ہم دم کہتے ہیں, خون کہتے ہیں. اور اس میں ایک الگ خلط آتے, خلط دم, ان کا مزاج ہے گرم تر, یعنی کہ ہوا کے مزاج. ہوا بہت جلدی خراب ہو جاتی. اگر ڈسٹ پارٹیکل آ گیا تو بھی ہوا خراب ہوگی. بدبو سے بھی ہوا خراب ہو جاتی, نمی سے بھی, خشکی سے بھی, سب خراب ہو جاتی. اور ایک سب سے بڑا پولوشن بھی ہے, ہم لوگ کبھی غور نہیں کیا, نوائز پولوشن. ہندوستان سے باہر کہیں بھی جا کے دیکھو, وہاں کہیں اون نہیں بجاتے. اگر اون بجائے تو سب لوگ پلٹ کے دیکھتے, سب کچھ ایمرجنسی. اگر وہاں سے آپ کو مار کھائیں گے اگر پیچھے سے پی 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 اگر کریں گے, ارے بھائی میں بھی جا رہا تم بھی جا رہے, کیوں پیچھے سے پی پی کر رہے, اس کو بولتے نوائز پولوشن. باہر کے لوگ انڈیا آ کے تو پریشان آتے, جیسے بامبے, محمد علی یا کہیں بھی شہر میں جا کے دیکھو, جو پی پی سائیکل رکشہ والا اپنی طرح سے جو جس کے ہاتھ میں آیا گھر پہنچتے تک پی 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 کیوں کرتے. اسلام میں ممنوع ہے, اسلام میں بہت سخت منع ہے. ایک حدیث بھی ہے, لا ترفعوا فوق صوت النبی, تمہاری آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مت لے کے, یعنی کہ آواز سے بھی کسی کو
तकलीफ मत दो कान को. या कभी कभी मौलाना लोग इतना चिल्ला चिल्ला के इतने करते हैं, ये तरीका नहीं है. जो वली सिफत अल्लाह वाले जो मोमिन बोलते हैं, वो सादगी से आराम से लहजे से एकदम मुलायम बातें करते, ये भी पोल्यूशन क्रिएट करते. तो हवा के अंदर गैर तबी मुकद्दर होना, यानी कि खून खराब होने की, खून की मिजाज में खराबी आने की बहुत सारे वजह है. अगर हमने बोला यहाँ खून को मैंने साफ करता हूँ, क्या साफ करेंगे? मैंने लौबान की धुनी एक हो गया, मैंने बोला थोड़ा नमी छोड़ दिया कुछ, तो भी हवा साफ हो गई. या हवा एकदम ड्राई है तो नमी छोड़ा थोड़ा सा, या ज्यादा ऑलरेडी नमी है तो गर्मी छोड़े. ये बहुत सारे तरीके हैं. अब हमने क्या पढ़ के रखी, जैसे कुछ चीज, जैसे एक पर्टिकुलर लिस्ट बना के रखी मुसफ़ियात के तौर पर. उशबा है, शैत्रा है, शैपोका सरपोका है, संदल सफेद है, सुर्ख है, बहुत सारे लिस्ट बनाए के लिए खून को साफ करने. जैसे माजिन उशबा है, इत्रफल शैत्रा है, माजिन मुसफ़ी खून है. कुछ लोग के पास जैसे मसाफी है, साफी है, खून सफा है, मतलब खून को साफ करने की. किस हाउ डज इट वर्क अगर पूछेंगे तो खाली लिखनी इसमें नीम है, बस खलास इसमें नीम है इसलिए मुसफ़ी. अरे भाई नीम है, पूरी नीम की जाड़ तुमने डाल दिया इसके अंदर, तुम्हारी दवा में नीम की जाड़ डाल, मुसल्लम नीम की बहुत बड़ा जाड़ डाल दिया. व्हाट डू मीन बाय नीम मुसफ़ी खून है? वो काम क्या करता है? या हमने पूरी की पूरी सरपोका डाल दिया, या हमने नाप डाल दिया. यहाँ एक चीज याद रखो, कोई चीज को ऐसा कैद करके मत रखो. सपोज मुझे गर्मी की वजह से, गर्मी की मौसम, बहुत सारे दाना निकल गया बॉडी में गर्मी से, नॉर्मल बॉडी की गर्मी या क्लाइमेट की वजह से. अब एक हकीम साहब को मालूम पड़ा, पेशेंट खुद बोल रहा मुझे हर मौसम में, हर गर्मी के मौसम में बदन पे दाना निकलता है बच्चे को. अब पेशेंट खुद डायग्नोसिस कर रहा है गर्मी की वजह से उसको दाना निकल रहा है. अगर सपोज वो एक अच्छे हकीम के पास जिसके हिकमत और उसकी सोच सही, वो क्या करेंगे? कोई ना कोई बॉडी को ठंडा करने वाले शरबत लिख के देंगे, मशरूब आमला या कोई भी ठंडे मिजाज की कोई चीज, माजून उशबा या शरबत उशबा या अरके उशबा, कुछ भी उठा के देंगे. तो डॉक्टर साहब आपने आपके पास एक दो दिन के बाद में आके, डॉक्टर साहब मेरा पूरा दाना निकल गया, यानी कि मशरूब आमला दिया, यानी बॉडी ठंडा हो गया, खुजली खत्म हो गई. इसका मतलब आमला मुसफ़ी खून हो गया. एक आदमी को किडनी फेलर हो गया, उसकी यूरिया बहुत बढ़ गया, तो यूरेमिया के तरफ चले और जबरदस्त खुजली हो रहा है. यूरोलॉजिस्ट क्या देते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या देते हैं? सोडा टैबलेट देता है, यानी कि हमारा कुर्से अल्कलून. अगर आपने कुर्से अल्कलून 2 BD दे दिया, आपको ये नहीं मालूम उसकी खून गंदा हो गया कि अच्छा है कि कुछ नहीं. पेशेंट आके बोल रहा है खुजली हो रहा है, अब तुमको मालूम किडनी पेशेंट है, अब वो कुर्से अल्कली दे दिया, उसका खुजली खत्म हो गई, यानी इसको तुम अल्कलोसिस के तरफ लेके आए, खून साफ हो गया, तो इसका मतलब कुर्से अल्कली मुसफ़ी खून हो गया. अगर किसी को खाना खाने के बाद में पूरा अर्टिकेरिया निकल रहा है, अब नींद अनपढ़ हकीम क्या बोलेंगे? अरे यार इसका कोई मुसफ़ियात लिख के दो, साफी लिख के दो, उसको खुजली हो रहा है. यानी उसका सोच खुजली तक है, स्किन में खुजली है, खुजली का मतलब खून गंदा है. बस एक कॉमन इंसान की थॉट है. हम बियोमस हकीम है, इसको अर्टिकेरिया हो रहा है, इसकी सफरा की इद्दत है, इसकी मुसफ़ी खून साफी की या मुसफ़ी खून की जरूरत नहीं. इनको सिर्फ एक मशरूब आमला या सफूफ किसनी सी सर्द खुश कोई भी दवा दो जो सफरा के ऑपोजिट है, सर्द तरम, उसकी खुजली कम हो जाएगी. एक ठंडा पानी भी पिया तो वक्ती तौर पर इसकी खुजली कम हो जाएगी. यहां हम मुसफ़ी खून याद करके लिखने की जरूरत नहीं, हमको माली सफरा की वजह से खुजली हो रही. तो जो भी दाफे सफरा है या मुसक्किन हरारत है या मुअद्दिलात सफरा है, आलू बुखारा हो, आमला हो, अनन्नास हो, कैरी हो,
नींबू हो, कोई भी खट्टी चीज आप उठा के दो, उसकी खुजली कम हो जाएगी। तो इसका मतलब तमाम खट्टी चीज मुसफ़ी खून हो गए। शरबत तमरलिंद हो, जवारिश सफराशी कम हो, जवारिश नारायण हो, जवारिश अरमस हो, जवारिश आमला हो, जवारिश शाही हो, मशरूब आमला हो, चित्रफल किसमिस, सब मुसफ़ी खून हो गए। कहीं लिखा है कि यूनानी किताबों में ये सब मुसफ़ी खून मरकब है? हमने सिर्फ पढ़ के रखे शरबत मुसफ़ी खून या माजून उशबा या इत्रिफल शहतरा या सरपोका के अलावा कोई चीज मुसफ़ी नहीं हमारे नजर से। या किसी चीज को, किसी को खुश्की की वजह से खुजली हो रहा है बॉडी में, ड्राइनेस कुछ नहीं दिख रहा, ये बूसत की वजह से। हमने माहौल जबन दिया, यानी कि बॉडी के अंदर तरी पहुंचाने वाली कोई तदाबीर दी, या छाछ दिया, या दही पिलाया, या सिकंजबीन दिया, या कोई भी ऐसी चीज जो उसको खुश्की को कम करे, तो काफी आराम हो गया। या कुछ यहाँ नारियल की तेल लगा था, तो नारियल का तेल भी मुसफ़ी खून हो गया ना, क्योंकि उसकी खुश्की की वजह से उसको खुजली हो रहा है। किसी को तहरी की वजह से, तहरी या रुतूबत की वजह से पिंपल्स आ रहा है। ज्यादातर आप देखते हैं कि ऑयली स्किन और रुतूबी स्किन में ज्यादातर मुआसे और ज्यादातर सेप्टिक आता है। हमने साफी लिख के दिया, मसाफी या कोई भी चीज लिख के ना, आदमी बोलते बहुत काफी अच्छा मोशन मिला, क्योंकि इसके अंदर इत्रिफल सना, सना ही है, सना, सनाए मक्की, सनाए क्या, मुस्सिल और मुलयन, मुलयन का काम करता है। जब आपकी बॉडी में गैर तबई मिकदार में अगर रुतूबत है, तो ताफुन की चांसेस ज्यादा है। एक कपड़ा आप गंदा करके रखिए, आधा घंटा गिल्ला करके, एक कपड़े को सुखा के रखो, ये जो पोंछ के हमने टॉवल नहाने के अंदर 1 घंटा 2 घंटे के अंदर उसको सूख के देखो, उसकी बास, रंग, बू, कीवाम, कलर सब खराब होके 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर पूरा फंगस आ जाते हैं। तो हम लोग फेंक देते हैं, उसको वापस धो लेते हैं। एक कपड़ा, एक क्लॉथ आपने 1 साल से ड्राई करके इस्त्री करके कबोर्ड में रखी, 5 साल के बाद में उसको उठा के देखो, उसके अंदर ना कोई ताफून, ना उसके रंग, कीवाम, बू, कोई चीज में तब्दीली नहीं। तो ये कुल जो अमर है, ये कुली उमूर है, ताफुन को आमाद करने में अव्वल नंबर में काम करते हैं रुतुबत। यानी कि फ्रूट्स, फल फ्रूट क्यों सड़ जाते हैं? उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं सड़ते? उसके अंदर रुतुबत नहीं है, हमने उसको सुखा के रख दी, या हमने फ्रिज में रख दिया, कभी ताफुन। तो किसी बॉडी के अंदर रुतुबत की वजह से स्किन में मुसलसल सेलुलाइटिस हो, या दूसरा कोई एक्सिमा हो, या दूसरा कोई डिजीज हो रहा है, तो आप देखो उसको आप निकालेंगे बजरिए मुदिर या मुलयन, तो उस चीज भी मुस्तफी का काम करेंगे। अक्सर मुझे क्या, हम लोग क्या करते, स्किन डिजीज आते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या दूं इसको, बहुत सारे सडन सडन सडन, मैं क्या करूंगा, जल्दी त्रिफल मुलयन या त्रिफल सनाई या अब्बे मुलयन, कोई लैक्सेटिव दे देते, उसके साथ में एक अब्बे तिंकर या अब्बे रसोत एक मुदिर भी दे देते। या ज्यादातर आप देखते हो मुंदमिले कुरू इंदिमाल और मुंदमिले कुरू दवा सब सर्द खुश्क रहते, यानी कि रुतूबत को कम करने वाले, वेदर इट इज गेरू हो, पिटकरी हो, मुल्तानी मिट्टी हो, सादा मिट्टी हो, जितने भी सर्द खुश्क मुर्दार संग हो, सब खुश्की क्रिएट करते हैं। अगर खुश्की क्रिएट करने से किसी की फोड़े, पुंसी या स्किन की खुजली अगर कम हो रही, तो तमाम सर्द खुश्क दवा, वेदर इट इज फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री हो, फोर्थ डिग्री हो, सब मुसफ़ी खून हो गए। फिर हमने किताबों में ये कायद क्यों बना के रखी? चंद किताब मुसफ़ियात, चंद मुहल्लिलात, चंद मुबरिदात, लेकिन मुसफ़ी जो वर्ड है वो अक्सर हम लोग गलत डायग्नोसिस करके देते, सबको उठा के देते, यार इसको अब्बे मुसफ़ी है तो ये मुसफ़ी, अरे नहीं बाबा रुको, तुमको मुसफ़ी के वर्ड साइड में हटाओ, फिलोसफी की माहियत की बात करो, इसको सड़न क्यों है या इसके अंदर खुश्की क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कहते कि खिलते खून को बताया कि खिलते खून, जिसे मैंने कल मिसाल बताया थे, सफरा को कुत्ते के मुशाबियत रखने वाले, यानी कि अपने जो हिफाजत के लिए कुत्ते को पालता है,
ویسے خون کے بارے میں کہتے کہ خون غلام ہے. غلام مطلب ہم کو ہمارا سرونٹ ہے، وہ خادم ہے، وہ خدام ہے، ہمارا خادم. سب جو بولو سب ہم سنتا ہے وہ خادم. لیکن جس دن خادم کا دماغ خراب ہوتے تو آقا کو مار ڈالتا ہے وہ. آقا کے کھانے میں بھی اگر کچھ بھی ڈال دیا زہر چیز یا پینے میں بھی آقا چلے گئے. تو خادم قوت ہے. خادم کام کرتا ہے کون؟ دم یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے، سروس کا کام. یہ ہر جگہ پہنچتا ہے. یا کہیں نہ کہیں کوئی بھی خامی یا امپیورٹی یا کوئی غیر طبیعی چیز خادم کے اندر آ گیا تو آقا کے اوپر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم کو ابھی کیا کرو؟ کسی صفرا کے غیر طبعی اعتبار سے صفراوی مزاج میں صفرا بڑھنے سے کیا کیا کیفیت سکن میں طاری ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو دکھنے میں سکن میں جو بھی لیجن آتا ہے اس کو ہم سکن ڈیزیز کہتے ہیں. اور آج ہم آپ جانتے ہوں گے اسکن اسپیشلسٹ کتنے بھی بڑے اسکن اسپیشلسٹ ہیں جس کے پاس اگر ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں ہو رہا ہے اس کے پاس ایک ہی جواب رہیں گے، دیز آر آل الرجک مینیفیسٹیشن، یا اٹ از آٹو یا اٹ از ایڈیوپیدک، جانتے نہیں، یا ایٹروجینک. یہ چار بیماری کی وجہ سے اسکن خراب ہوتی ہے، دوسرے کے پاس سوال ہی نہیں. وہ بھی کوئی بھی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جو پیشنٹ جاتا ہے کسی کی تو کوئی اسکن کے پاس جاتا ہے تو 6 سال سے کوئی محمد کا فون چالو ہے، مطلب بند کرو بولو ان کو، اس کے کیا نام اس کا مائک. محمد کچھ پرسن کر رہا ہے، کچھ تو کچھ چالو کیا وہ شاید اوکے بھی اوکے. تو اسکن اسپیشلسٹ کیا بولیں گے؟ ایکسیما رہنے دے، سوریاسس رہنے دے. اب تو سوریاسس کو بھی مصفیہ خون دوا دے رہے، تم ایکسیما کو بھی مصفیہ خون کے نام سے جو پڑھ کے دے رہے، جو کسی کو کٹ ہو کے وونڈ ہو گئے اس کو بھی مصفیہ خون دے رہے، کسی کو اگر سمجھو ڈائبٹ اس کو بھی تم مصفی. تمہاری نظریہ کیا، تمہاری ماہیت مصفیات کے طور پہ بھی اگر دے رہے، سوریاسس کو بھی ایک جیسے دوا دے رہے، ایکسیما کو بھی تم خون کو صاف کیسے صاف کر رہے؟ سوریاسس کی وجہ اگر خشکی کے امراض ہے، سوداوی امراض ہے، سرد خشک ہے، تو اس کو گرم تر دوا کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کے اپوزٹ مزاج علاج بھی ضد. کسی کو ایکزیما ہو رہا ہے، صفراوی ہے، کہ اس کی اپوزٹ سرد تر بلغمی مزاج کی دوا چاہیے. کسی کو بلغمی مزاج سے کجلی ہو رہے رطوبت کیسے تو اس کو گرم خشک دے یا سرد خشک دوا دو. جب تک ہماری یہ جو کنسپٹ ہے یہ فزکس کا کنسپٹ یہ سب سے بہترین کام کرتا ہے. اب تعفن ہو رہا ہے، تعفن کے پیچھے رطوبت ہے، کئی جگہ کہیں پھٹ رہا ہے اسکن، کہیں نہ کہیں خشکی کی غلبہ ہے، کبھی درد ہو رہا ہے اسکن میں، یہ بھی غیر طبیعی ہے نا، کجار ہے. کھجلی کی آگے ایک درجہ ہے درد. کسی کو گدگدی ہو رہے، گدگدی، کجلی، درد، پیرستیشیا، نمنس، حرارت محسوس ہونا، یہ سب چیز اعصاب کے اوپر یا اسکن کے اوپر پیدا ہونے والی مختلف درجے کی غیر طبیعی تحریک ہے. وہ اپنے اسلام میں بھی بتایا کہ جہنم میں اسکن جل جائیں گے واپس اسکن ڈال دے گی، کیونکہ احساس جو ہے نا اسکن سے آتا ہے. اگر ہم کو اسکن نہیں ہے تو ہم آگ سے جا سکتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں پڑے ہم کو جل رہے ہیں، بھلے ہم جل جائیں گے، ہماری مسل جل کے خاک ہو جائے گی، لیکن ہم کو تکلیف نہیں ہوگا. کیونکہ تکلیف کہاں سے آتے؟ تکلیف آتا ہے اسکن سے، احساس اسکن سے آتا ہے. کیوں؟ انسان کے اعضا ایک قسم کے اعضا ہے اسکن سب سے بڑا، سب سے معتدل مزاج رکھنے والی اعضا ہے اسکن. اس میں سب سے معتدل اعضا اسکن ہے، اپنے ہاتھوں کے جو اسکن، اس میں انگلیوں میں، اس میں بھی سب سے معتدل کے قریب، ناٹ معتدل، معتدل حقیقی نہیں، معتدل قریبی، انگشت شبابہ، اس میں بھی سب سے معتدل یہاں.
تو स्किन एक ऐसी चीज है, बैरूनी माहौल की कोई भी गैर तबई चीज हो या अंदरूनी कोई किस्म की गैर तबई चेंजेस हो, सबसे पहले स्किन में जाहिर होता है। और हम लोग की एक आदत है, स्किन में कोई चीज अगर जाहिर हो गया इसका मतलब हम ये कहते हैं कि खून गंदा हो गया। याद रखो, स्किन के अंदर मिजाज में चेंजेस हुआ है, स्किन में मिजाज में चेंजेस हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? सर्द खुश्क भी मुसफ़ी खून है। अगर किसी से पूछ के देखो तो मुसफ़ी खून का मिजाज क्या होना चाहिए, मिजाज में मुसफ़ी खून का कोई मिजाज नहीं। अगर किसी ने पूछा मुंदमिले कुरू, यानी कि ये कुरू को इंदमाल करने वाली दवा, हम फट करके बोल सकते हैं मुंदमिले कुरू या माने अफूनत का क्या मिजाज होना चाहिए, सर्द खुश्क, क्योंकि खुश्की चाहिए। फिर उसमें क्या क्या तो हम बोलेंगे मुल्तानी मिट्टी है, ये सादा मिट्टी है, गेरू है, बेटकरी है, बिरिया, ये सब बोल के हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्द खुश्की की वजह से हमारे बॉडी के रुतूबत को या माने अफूनत का काम करते, माने अफूनत। तो अगर किसी ने आपसे पूछा मुसफ़ी खून का मिजाज क्या होना चाहिए, कोई जूनियर डॉक्टर ने पूछा, तो हम फौरन बोलेंगे मुसफ़ी खून का मिजाज तो हम लोग को नहीं पढ़ा, हमको इतना पढ़ा है कि मुसफ़ी खून का मिसाल बताया, सिर्फ मिसाल पढ़ के रखी हमने। इंसान का मिजाज क्या है, वाला मिसाल क्या है, तो अजमल है, अलाउद्दीन है, अशरफ है, ये है, उस्मानी है बोल के नहीं। इंसान क्या है नहीं समझा है, हमको मिसालें दे दी है, ये मुसफ़ी खून का मिसाल है। ये किसी ने नहीं बताया मुसफ़ी खून हाउ डज इट वर्क इन फोर मिजाज। अगर आपकी मिजाज सफरावी है तो सफरा बढ़ गया तो भी आपका खून खराब हो सकता है, नहीं कि आपके अंदर स्किन डिजीज हो सकते हैं। अपनी सफरावी मिजाज वाले को सफरावियत कम हो गया, यानी बलगमियत आ गए, तो भी इसको स्किन डिजीज हो सकता है। दमवी मिजाज, खिलता दमवी मिजाज, इसके अंदर हरारत रुतूबत, हवा की मिजाज, उसकी रुतूबत अगर बढ़ गया तो भी मुहासा आ सकता है। उसके अंदर बरूदत बढ़ गया तो उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आपके अंदर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, मुसफ़ी खून देना पड़ेगी, लेकिन ऐसे मुसफ़ी नहीं जो हमने पढ़ के लिखते हैं। उसकी इस्लाह करो। अभी किसी की जिगर की खराबी कैसे डिस्लिपीडियम में हो रहा है या यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो माजुन देबीदुल वर्दो या शरबत दीना और ये सब मुसफ़ी खून के, यानी कि हमारी जबान से मुसफ़ी खून का काम कर रहे हैं। जबकि खून की ही सफरा की गर्मी कम हो गई, यानी सफरा गर्म खुश्क होना चाहिए। सफरा के अंदर बलगमियत बढ़ने से जिगर काम करना छोड़ दे, इसलिए पूरी ब्लड की केमिस्ट्री खराब हो गया। पूरी ब्लड की केमिस्ट्री खराब होना मतलब ब्लड इम्प्योर हो गया, तो हमें उधर कभी कभी मुकव्वी जिगर देना पड़ेगा। अब कभी कभी तुम्हारी मैदे की कमजोरी की वजह से भी खून के अंदर केमिस्ट्री तब्दील हो गया, तो मुसफ़ी खून देने के बजाय आपको मुकव्वी मैदा दवा देना पड़ेगा। तो इसका था मुकव्वी मैदा भी मुकव्वी मुसफ़ी खून हो गया। तो ये साफ जाहिर होता है द वर्ड मुसफ़ी कई जगह पे ऐसा बांध के टेरिटरी बना के मत रखो, एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर से आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। सफरावी में, सफरावी मिजाज में गैर तबई हो गए तो नीचे लेके आना, या नीचे हुए सफरा को अपनी तरफ लेके आना, ये भी एक मुसफ़ी को। किसी को दमवी मिजाज के अंदर अगर उसकी रुतूबत बढ़ गया तो रुतूबत कम कर दिया तो उसके लिए मुसफ़ी का खून कर, या उसका बरूदत को ऊपर लेके तो भी काम करेंगे। बलगमी मिजाज में ये दोनों बढ़ गया, जैसे एक्सिमा है, वूजिंग है, बार बार, जैसे किसी को आप देखते हैं कि जैसे डायबिटिक पेशेंट को, सब डायबिटिक पेशेंट को वुंड का इश्यूज नहीं रहते, नॉन हीलिंग अल्सर्स नहीं होते। कुछ लोग डॉक्टर साहब मुझे बार बार आते हैं, मुझे कभी वुंड एक दो दिन में सूख जाते। जो बलगमी लोग रहते हैं और जो दम्मी लोग को अगर डायबिटिक हो तो उनको डायबिटिक फूट होता है, उनको ज्यादा तकलीफ होता है, उनकी जल्दी हील नहीं होती। क्यों? ये दोनों मिजाज में रुतूबत की गलबा है। सफरावी और सौदा में इतना रुतूबत नहीं, इसलिए उसको जल्दी सूख जाती है उसकी वूंड। अब यहां तुमको मुसफ़ी खून ढूंढने की जरूरत नहीं, यहां तुम उसको मुलयन दो या उसको मुस्सिल दो, ताकि उसको जख्म भर जाए, ताकि वो मुसफ़ी खून का काम करे, यानी रुतूबत को निकाल दिया, जख्म जल्दी सूख गया। ये नजरिया ये रखना चाहिए। सौदावी है, ताफुनी अमराज का चांसेस बहुत कम है सौदावी मिजाजों में। क्यों? ऑलरेडी खुश्क है वो। खुश्की क्या क्रिएट करता है? तफर्रुक, टूटने के अमल बढ़ाता है।
اگر تمہارا اسکن بار بار ٹوٹ رہا ہے تمہارے ہاتھ پیر کا، تم ایون تمہاری کریک فٹ میں بھی تم مصفی خون لکھ کے دیتے، ارے کیا نظریہ ادھر بھی. تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہیں، تمہاری سالٹ کے اوپر کریک ہے فٹ میں پڑ رہے ہیں، تم اس میں بھی سر ذرا کنسپٹ تو پہلے کلیئر کرو. یا خشکی کی غلبہ ہے، اس کو طریقے کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں کیا دوں، کون سی مرہم دوں یا کون سی ایسی دوا دوں تھوڑا سا لزوجت آئے، تھوڑا وہ تفرق کم ہو جائے. تو تفرق کو کم کرنے والے دوا بھی مصفی خون ہو گئے. تو سوداوی مریض کو مصفی کی ضرورت نہیں. سوداوی مریض کو چاہیے گرم تر دوائیں. میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ہے، سوریاسس کا پیشنٹ کو کیا دو تو حکیم صاحب نے یا ہو مصفی خون ماجنو، اس کو میں دیتا ہوں کبھی انگوری، کبھی شربت اناب گرم تر دوا دیتا ہوں، کبھی خمیرہ مروارید دیتا ہوں. کیونکہ میں یہ دیکھتا کہ اس کی پھٹنے کی، اسکن بار بار چھلکا اتارنے کی وجہ ان کی باڈی میں خشکی کی غلبہ ہے، اس کو دور کرنا ہے، تب اس کو آرام ملتا ہے. تو چاروں خلط والے میں کیا کیا اسکن ڈیزیز، کیا کیا واٹ ٹائپ آف ڈیزیز میں where they are more prone to یا more susceptible، یہ مریض more susceptible to this problem. یہ ہر جگہ پہ یہ قانون لاگو ہے، کووڈ میں بھی. پوسٹ کووڈ کے اندر اگر کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب پوسٹ کووڈ کے لیے کیا تدابیر اختیار، پوسٹ کووڈ میں مزاج کے حساب سے 4 تدابیر ہونا چاہیے. سفراکوی کی کووڈ پوسٹ کووڈ سمٹم الگ ہے، بلغمی کی پوسٹ کووڈ سمٹم الگ ہے، دموی کا الگ ہے، سودا کا الگ ہے. سب کو کیسے تم ایک جیسے دیں گے، جیسے سب کو جیسے مصفی خون دیں گے. تو بہرحال پرابلم کیا ہوا، زیادہ تر اسکن ڈیزیز ایکیوٹ میں جو آتے تھے پرانے زمانے میں، جیسے اٹیکیریا ہے، ایکیموسس ہے، یا کوئی چیز اچانک کچھ لیا گیا، جتنے بھی اسکن ڈیزیز کو بیسیکلی ڈرماٹائٹس لکھتے یا ایکسیما، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھتے ہیں ڈرماٹائٹس. ایک وہ ڈائگنوسس نہیں ہے، وہ ایک الفاظ ہے، وہ ایک لیبل ہے. وہ ڈرماٹائٹس انفلمیشن آف دی اسکن، وہی ڈرماٹائٹس. ایکسیما ایک سمجھو ایک ornamental ورڈ ہے، وہ ایک ornamental ورڈ بول سکتے ہیں ایکسیما یا نعرے فارسی. ایکسیما دکھنے میں اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ایکسیما ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے کجلی ہے. کجلی بولتے ایک سب اسٹینڈرڈ ڈیزیز ہے. بڑے بڑے لوگ آ کے مجھے کجلی نہیں بولتے، ڈاکٹر صاحب آپ سم ایکسیما ایسا بول کے تم کو بہت اسٹائلش ماریں گے، کیونکہ وہ ایکسیما کو کجلی بولنے میں تھوڑا شرم محسوس کرتا ہے. تو بہرحال ہر ڈیزیز کو آپ لوگ کو اس کو ماہیت جاننا ضروری ہے. ماہیت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ماہیت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مصفی خون، چلو ایک ان پڑھ نیم حکیم مصفی خون لکھ کے دیتے، اگر کسی کو اسکن ڈیزیز ہو گیا تو اوپر صافی یا مسافی لکھ کے دیا، پھر ایک ماجون اشبہ دے دیا، رات میں ترفل شاطرہ دے دیا، کس اسفر دے دیا، ماجون مصفی خون دے دیا. جتنا مصفی کا ورڈ مرکب میں سب لکھ ڈالا. جیسے کسی کو سیکشل ایشوز آتا ہے تو کچھ حکیم لکھے تھے ماجون مغلظ جوہر والی، ماجون مغلظ حلوہ والی، حلوہ مغلظ، جتنے مغلظ اور مقوی ورڈ بیان رکھے سب لکھ ڈالتے. بھائی وہ ان لوگ کی کام کی، ان لوگ نے کیفیت نہیں سیکھی. ہم 5 سال 5.5 سال اس دور میں تھا، بھلے میں اور تم لوگ کچھ پڑھے نہیں اس دور میں، وہ بات الگ ہے، کسی کو بولنا نہیں، لیکن کم سے کم تو ابھی تو پڑھنا چاہیے. بھائی کام کیا ہے، بولو بھائی میں نے 5 سال نہیں پڑھا، ابھی اور نہیں پڑھیں گے، یہ کون سی صفائی ہے. بھائی ہم نے بہت افسوس ہے کہ ابھی ہم نے 5 سال قاعدے سے یہ انسان کی جو ماہیت پڑھے ہوتے تو ہم صرف طبیب نے، ہم دنیا کی بہت کچھ بنے ہوتے. سب چیز کی اگر ماہیت پڑھا ہوتا، ہم نے کوئی چیز کی ماہیت نہیں پڑھے، خود کا بھی ماہیت نہیں جانتے 99% ڈاکٹر کو بھی، اپنے بیوی کا بھی ماہیت نہیں جانتے، اپنے خود کے بچے کا بھی ماہیت نہیں جانتے. تو ہم لوگ ہاؤ کین وی ڈیل ود دم. اب یہاں یاد رکھو ورڈ مصفی ابھی استعمال کبھی کرنا نہیں، مصفی خون دوا دے ڈالو. اس لیے میں اکثر کوئی پیشنٹ کجلی کی یا کوئی چیز تصویر ڈال دیتے واٹس ایپ پہ، نیچے لکھتے حکیم صاحب رہنمائی فرمائی. ارے بھائی مجھے اس تصویر سے زیادہ مجھے چاہیے اس کی کیفیت کیا ہے، کس مزاج میں یہ ہوا، کس مزاج میں یہ پرابلم.
اگر ایکسیما چاروں مزاج میں ہے تو ایکسیما کا لائن آف ٹریٹمنٹ چاروں کے لیے الگ ہے. جسے ابھی آپ کووڈ کی بات کرتے, ایک مثال کے آپ کو بتاتا ہوں. کووڈ سے زیادہ ہم لوگ کو دھیان دینا چاہیے کس کو کووڈ ہو رہا ہے, یا کس کو کووڈ ہونے والا ہے, یا کس کو کووڈ ہو چکی, اس کی جانکاری ہونا چاہیے. جیسے پانی کا قطرہ ہے, پانی کی قطرہ ایک جگہ پہ گرے تو جہاں وہ گرتا ہے اس کے اوپر وہ پانی کی تکلیف دیتا. جیسے آپ کے گلاس کے اوپر پانی گرا, گرنے دو, یا کوئی ٹائل کے اوپر, یا ماربل کے اوپر, یا گرانائٹ کے اوپر, یا پتھر کے اوپر ایک قطرہ پانی گرا, گرنے دو نا, کیا پرابلم, سوکھ جائیں گے. لیکن وہ پانی اگر قرآن کے اندر, یا کوئی ہماری خاص الخاص ڈاکیومنٹ, یا کوئی ہمارے لٹریچر میں, یا کوئی ہمارے ایسی سات پارا, یا کوئی ہماری ویری ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہو, یا نوٹ ہو, پیسہ ہو, جس کو اندر گرنے کی وجہ سے ہماری ڈاکیومنٹیشن خراب ہو گیا, تو سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سیم چیز کووڈ کا پرابلم سے, کووڈ سے زیادہ پرابلم کووڈ کس باڈی میں داخل ہوتا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ہم نہیں دیکھتے. تو یہاں یاد رکھو, ایک چیز یاد رکھو, مصفی خون کو کیٹیگرائز کرو. اگر زیادہ بھی نہیں کیٹیگرائز کریں گی, ہماری اطباء نے اشبا, یہ سرپوکا وغیرہ ٹھنڈے دوا کو زیادہ مصفیوں میں کیوں گنا ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم پہ پٹ پٹ کجلی کجلی بول کے آتے تھے, زیادہ سا سفراوی بیماری, کھانا کھا گیا فوڈ پوائزننگ ہو گیا, سفرا بڑھ گیا, کجلی شروع ہو گیا, کچھ انوانٹیڈ چیز کھائے تھے, یا موسم کی تبدیل میں کچھ, تو یہ جو سفرا اچلتے تو زیادہ تر اس دور میں جتنے بھی, جیسے آلو بخارا ہے, اناب ہے, اشبا ہے, بہت سارے چیز کے اوپر کیا کر کے رکھے اس کو مصفی خون میں 9 میں لکھ ڈالے. اب یہاں تک کہ یونانی کتابوں میں اشبا کا مزاج گرم لکھا ہے, اور اس کی انڈیکیشن زیادہ تر سفراوی میں لکھا ہے. جبکہ آیورویدک والے سرسپ پر کہتے اشبا کو ٹھنڈا مانتا ہے, تو میں بھی ٹھنڈا ہی مانتا ہوں, کیونکہ مجھے میرا تجربے سے وہی حاصل ہوا, کتاب سے نہیں. کیونکہ جس کو اگر سمجھو یورک ایسڈ بڑھ رہے ہیں, سب سے بہترین دوا ہے ماجون اشبا, باقی کوئی چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں تم کو. 1 مہینہ اس کو ماجون اشبا کھلاؤ, 1-2 سال تک اس کو یورک ایسڈ کی تکلیف ہی نہیں رہیں گی. کسی کو رومیٹک فیور ہے, یہ سر آر اے فیکٹر بڑھ گیا, یونانی اطباء کے حساب سے خون گندا ہو گیا, جس کا یہ سر بڑھ گیا مصفی خون دو, جس کو ایسو بڑھ گیا مصفی خون دو, جس کو آر اے بار بڑھ گیا مصفی خون دو. اس جگہ پہ سب سے بہترین چیز ہے ماجون اشبا, کیونکہ یہ مدر بھی ہے, مسکن حرارت بھی ہے, یہ مقوی جگر بھی ہے اشبا. یہ آیورویدک کی بہت سارے اشٹانگ ہردے سے لے کے جتنی بھی ان کی اوتھینٹک کتابوں میں اشبا ٹھنڈا لکھا ہے. اس لیے ہمارے گاؤں میں گرمی کے موسم میں اس کا شربت نکلتا ہے, اشبا کا شربت بہت فیمس ہے, گاؤں گاؤں میں بناتے ہیں, گھر گھر میں بناتے ہیں. ایسے بہت سارے مسٹیک ہمارے مفردات میں لکھ کے رکھے کچھ لوگ نے, کٹ پیسٹ کاپی, کٹ پیسٹ کاپی, یہ نہیں لکھتے کہ کبھی بھی یاد رکھنا, کسی نے کہ مندمل, جیسے آپ ہمارا ارمس کا ایک پروڈکٹ آتا ہے صفوف مندمل, اس کی کنڈن پڑھ کے دیکھو, تب آپ کو سمجھ میں آئیں گے یہ کام کیسے کر رہے ہیں. اس کنڈن میں کیا ہے معلوم, اس کنڈن میں پٹکری بریا انتہائی سرد خشک, گودندی انتہائی سرد خشک, تھوڑا سا رال خشک. ابھی ہم مرہم لگاتے, مرہم نے خشکی کریٹ کرنے والا اگر مرہم نہیں تو کبھی وہ اندمال نہیں ہوتا. اینٹی بایوٹک سے زیادہ خشکی کریٹ کرتا ہے, وہ بیکٹیریا کو مارتا ہے یا فنگس کی گروتھ کو روکتا ہے. تو کوئی بھی بلیڈنگ میں آپ ڈال سکتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی چیز کتا منہ میں لگائے تو صاف کرنے کے لیے منہ لگایا کتے نے, مٹی سے صاف کرنے کو بتایا. کبھی سوچے کہ کیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. مٹی کا مزاج کیا ہے, سرد خشک. جو صاف پاک مٹی کی بات کر رہا ہوں, ہم نے گندا کر دیا مٹی کو. صاف مٹی سرد خشک. اگر آپ کے پاس کوئی دوا نہیں ہے, کسی کو زبردست ارٹیکیریا ہو رہا ہے, اس کو کیا کرو, صاف مٹی لو,
रात में बोले पानी में डाल कर रखो, ऊपर का पानी पी लो, सर्द खुश्क, थोड़ा मिट्टी खा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम। कहीं जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, मट्टी डाल दो उसके ऊपर, सर्द खुश्क है वो, आबिस काबिस मुजफ्फिफ खून बंद हो जाएंगे, हीलिंग भी हो जाएगी। ये हमारी मिट्टी नहीं है, कम से कम 2 3 4 फीट अंदर जाना पड़ेगा, वो भी गंदा करके रखे इंसान ने। साफ थे, अल्लाह ताला ने साफ मिट्टी बना के भेजी थी। या कवेलू या पुरानी ईंट को तोड़ के पाउडर करके पानी में डाल के रखो, उसके ऊपर का पानी पे बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। किसके लिए? जहां तैरी रुतूबत की वजह से स्किन में अगर कोई डिजीज है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है मिट्टी। मिट्टी पी भी सकते, खा भी सकते। अभी आयुर्वेदिक में और या नेचुरोपैथी वाले में एक थेरापी है, मड थेरापी, कीचड़ थेरापी। कीचड़ कीचड़ हमने भर दिया, कीचड़ बोलना नहीं चाहिए उसको। बच्चा कीचड़ में खेलता बोलते, कीचड़ हमने कर दिया, वो कीचड़ नहीं था। हमने भी बचपन में बहुत मिट्टी में खेली, कोई स्किन डिजीज नहीं होता था। अब आयुर्वेदिक वाले क्या करते, कीचड़ में बैठते पैसा दे के, या ये प्रकृति वाले पूरा मट्टी मड पैक करके जाके लेटता है। क्योंकि मट्टी का मिजाज क्या है, सर्द खुश्क। बहुत सारे एक्सिमा में, ऊजिंग डिजीज में बहुत बेहतरीन काम करता है। तो याद रखो, द वर्ड मुसफ़्फ़ी आज के बाद में इस्तेमाल नहीं करने का। उनको पूछो क्या प्रॉब्लम है, पहले इतना तो डिसाइड करो स्किन में प्रॉब्लम सफरावी है क्या, या रुतुबी है क्या, हरारती है क्या, बरूदती है क्या, या ये बूसती है क्या। इतना तो पहले फाइंड आउट करो, ताकि ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक ना करें। इससे अक्सर आप देखते हैं आप लोग बड़े बड़े मुसफ़ियात देने के अंदर, डॉक्टर साहब आपके आके डॉक्टर साहब आपके दवा खाने के अंदर खुजली बढ़ गई, यानी सफरा बढ़ गया होगा, खुजली बढ़ गई, क्योंकि तुमने माहियत देख के नहीं दिया। तुम लफ्ज मुसफ़ियात पढ़ के रखिए और उसको स्किन देख के तुमने बोला ये स्किन डिजीज है, इससे उसको मुसफ़ियात की जरूरत है। अगर हमने हमारी पढ़ाई में या हमारी तबाबत में ऐसी चीज, हर चीज के बारे में गौर करे, फिक्र करे, तो कभी गलत नहीं हो सकता। बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सही ढंग से करेंगे। क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल की एक मेटाफिजिकल बातें है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। ये एक्यूरेसी तब खत्म होते हैं जब हम वर्ड में फंस जाते, लेबल में फंस जाते, मुकव्वी मुगल्लिज, ये वर्ड में जब फंसता है ना तो फंस जाते। तो याद रखो, मुसफ़्फ़ी खून का लिस्ट मत बनाओ, मुसफ़्फ़ी खून का ऐसा लिस्ट बनाओ, गर्मी की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते, उसके लिए क्या क्या दूं, सर्दी की वजह से स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम दूं, उसकी लिस्ट बनाओ, तरी की वजह से क्या क्या स्किन प्रॉब्लम हो सकते, इसकी लिस्ट बनाओ, खुश्की की वजह से क्या क्या स्किन प्रॉब्लम हो सकते, इसके लिए लिस्ट बनाओ। तो कभी भी, मैं समझता हूं आज सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले डॉक्टर कौन है? स्किन स्पेशलिस्ट है। और कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट की पेशेंट वहां जाके इंटरव्यू करके देखो, कितने साल से आ रहे, कभी 2 साल से, कभी 10 साल से, 20 साल से दवा खा रहे। कौन सी दवा? सिर्फ 4 दवा, उसके अलावा कुछ नहीं। एंटीस्टामिन, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल, और क्या चीज? कभी भी एक डॉक्टर ने, मैं ये नहीं देखे स्किन स्पेशलिस्ट किसी को, सपोज अगर डाइजेशन डिसऑर्डर की वजह से खुजली हो रहे, अगर आपने एक अच्छे मुस्सिल और मुलैयन दे दिया तो उसकी खुजली खत्म हो जाती। तुमने कभी देखे कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट, एमडी, डीएम, जो भी डीवीडी बोलते हैं, कभी किसी को मुस्सिल मुलैयन या कोई दवा से उसको इलाज करने की कोशिश नहीं? तो हमारे पूना में एक बहुत बड़ा फेमस एक स्किन स्पेशलिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा मेरा टीचर भी रह चुके हैं, एमबीबीएस एमडी, बहुत पुराने। उसके पास इतना पैसा आ गया, उसको किसी ने, किसी गुंडे ने किडनैप कर दिए थे। 3 4 दिन में पेपर में बहुत बड़ा न्यूज हो गया था। बाद में 3 या 4 करोड़, पता है कुछ बहुत बड़ा करोड़ दे के उसको चुरा के लेके आए बोलते। मतलब मेरा कहने का मतलब उसका नहीं, स्किन में इतना चांसेस है, इतना चांसेस है। मैं हमेशा ये कहते हैं कि आज की जो दौर है, आज जो दौर में हम लोग जी रहे हैं, जो पोस्ट कोविड में पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक मेटामॉर्फोसिस हुआ दिमाग। मॉडर्न में जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, इतना बड़ा साइंटिफिक एडवांस है, ये मॉडर्न मेडिसिन इतना एडवांस नहीं है। क्योंकि एक मामूली सी नजले की वजह से अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क हथियार डाल दिए। एड्स और कैंसर की वजह से नहीं, मामूली से एक नजला, जिसको हम H1 बोलो, N1 बोलो, कोरोना बोलो। तो आम पब्लिक के सामने भी ये साथ में, क्या अभी आप देखेंगे इधर, क्या नाम उसका, एक कर्नाटका में नहीं, या तेलंगाना में या आंध्रा में,
किसी ने फ्री में बांट रहे, लाखों लोग जाके जमा हुआ है वो दवा के लिए, फ्री में बांट रहे। हम कौन सी दौर में, कौन सी सदी में। तो आज हर इंसान ये जानते कि नहीं यार, हमारी पुरानी तरीका, पुरानी लेगेसी, हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज हमारे लिए सही है। हम बहुत भागे मॉडर्न के पीछे, हम इतने बड़े सजा, इतने बड़े टैक्स हमको भरना पड़े, आखिर हम पहुंचे एक नजले की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर तक हम पहुंच गए। तो सब लोग एक वापस थिंकिंग करना शुरू कर दे, नो, हम हमारी थॉट बदले। तो ये दिस इज द राइट टाइम अपनी फलसफा, अपनी साइंस को कायदे से इस्तेमाल करके उस दौर में, जो सुनहरे दौर में लिखे थे हमारे थे, उस दिन में अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया है। अभी भी उस कीचड़ में मत फंसो जो सिम्टोमेटिक वर्ल्ड में। सिम्टोमेटिक इलाज करो तुम, डक्सासिपिन चला के किसी को तकलीफ दूर कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जमीर रखो कि नहीं बाबा, ये जमीर के एतबार से मुझे उसकी बैरूनी नहीं, अंदरूनी तौर पे जो मैंने जो पढ़ा उस चीज को मुझे ट्रीट करना है। दिस इज अ रियल टाइम, जिसको बोलते हैं लोहा गर्म है, मारने का टाइम है। इस वक्त में भी, इस दौर में भी अगर हमने जागा नहीं, मैं समझता जिंदगी में कभी ये चांस मिलने वाला नहीं कि हमको भाषण देने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत, सब समझ गया। जिसको जब पढ़ी है ना, मार पड़ी, सब जानते हैं मॉडर्न में कोई दवा नहीं, कितना हम परेशान थे मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। इससे अच्छे छोटी छोटी इनहेलेंस से, छोटी छोटी नुस्खे से हम लोग बच गए। तो हर बीमारी में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करो और दुनिया के सामने इसको पहुंचो। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक के अलावा ऐसे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर। व्हाट इज मुगल्लिज, व्हाट इज मोहरिक आसाब, व्हाट इज मुमसिक, व्हाट इज मुंदमिल, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए, तुम लोग बड़े बड़े फार्माकोलॉजिस्ट हो गए यूनानी का। ये इसीलिए हुआ। हम एक किताब आते हैं, आप, मैं एक दिन एक लेक्चर रखना चाह रहे कौन सी किताब आपको पढ़ना चाहिए आपके अकल खोलने के लिए, वो एक इंशाल्लाह एक लेक्चर एक दिन मैं रखूंगा। ये अदविया के एक कुल्लियात अदविया बोल के हकीम कबीरुद्दीन साहब का एक नुस्खा है। हकीम कबीरुद्दीन साहब का कुल्लियात अदविया, यानी कि एक एक दवा, हाउ डज इट वर्क इन योर बॉडी एज पर द मिजाज एंड नौइयत, वो पढ़ो। ये नहीं कि ये उशबा, ये मुसफ़ी खून है इसलिए स्किन में इस्तेमाल करेंगे, ये सिंगाड़ा है, ये मुगल्लिज़ मनी है इसलिए सूरत इंजाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सुरंजान है, ये मुसक्किन आलम है इसलिए इसको वजह, ये हमारे लिए नहीं। ये पब्लिक की लैंग्वेज, दिस इज पब्लिक लैंग्वेज, दिस इज कॉमन लेमन लैंग्वेज, नॉट आवर लैंग्वेज। मुंजीद मुस्सिल सब है हमारे पास, इतनी चीजें टॉपिक है कि अभी हमने तो उतरा नहीं, हम बाहर ही अभी तक, अंदर हम पानी में उतरा ही नहीं। इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक को कुल्लियात अदविया, मैं इसलिए कि मेरे पास सब किताबें रखी जो ऑथेंटिक, जो किताब आपको, मैं एक बार एक पूरी किताब मेरे टेबल में रख के आप लोग एक किताब की एक तशरीह करके किताब को आपको तारुफ करना चाहिए, किताब क्यों पढ़ना चाहिए, इस किताब में क्या चीज है, ये किताब पढ़ना चाहिए। आलतू फालतू किताब है ज्यादातर यूनानी में, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपने आप को जो राइटर साबित करने के लिए इधर से उधर से इधर से सब जमा करके अपने नाम से बहुत सारे किताब लिखी, उससे अच्छा कि अपनी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपने तरफ से। इंशाल्लाह यस, इंशाल्लाह अपन उसके बारे में डिटेल बात करेंगे एक दिन। मैं वो मेरे कुछ किताबें हॉस्पिटल में, कुछ फैक्ट्री में, तो खुद की लाइब्रेरी में, तो 3 जगह पे मेरा लाइब्रेरी है, तो एक साथ मैं जमा कर दूंगा, तो फिर आप लोग को बताऊंगा फर्स्ट क्या किताब पढ़ना चाहिए, बाद में आपको क्या किताब पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी नजरिया, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। दैट इज ऑल डिफरेंशियल काउंटर, डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। ओके, सर सर ओके, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सर। और इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर वो आपने मुझे ट्रीटमेंट जो बताया था सर, मुझे इधर ताज़ा पानी पीते ही एकदम से सर खांसी आने लगती थी। तो ना उससे अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होता था ना लोअर सर। और फिर उसके बाद में आपने हब्बे तिनकार हब्बे हल्दी तो रिचरफल किसमिस बताया था। तो उससे सर खाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो लिवोसिट्राजिन मॉन्टिलियोकास्ट का कॉम्बिनेशन खाता हूँ सर। अगर वो एक दिन भी ना खाऊं शाम को, तो सर तुरंत ही उसके बाद में कुछ भी खाते पीते टाइम पे खांसी आने लगती है। उसको मुसक्किन सफरा दवा दो। मुसक्किन सफर। यस, काइनी लो, जी जी चिकनजेबी लो, शरबत जी तमरलिन दो, जवारिश तमरलिन दो,
जवारिश सफरा शिकम हो, जवारिश अनारैन हो, कोई भी दवा दो। नहीं सर, पेशेंट का मिजाज जो है वो सर बलगमी है बहुत ज्यादा, मतलब जो है तो फिर गर्म सर्द खुश्क दवा दो। इथ्रिपल किसनी से देते हैं सर? इत्रिफल किसनीसी दे सकते हैं, शरबत खसकास दे सकते हैं, सफूफ किसनीसी दे सकते हैं, कोई भी सर्द खुश्क दवा दो। सर 6 महीने से लगातार ये लिवोसिट्राजिन मॉन्टेल्यूकास्ट देते हैं, अगर एक दिन छूटता है तो दिक्कत हो जाती है। लिवोसिट्रिसिन सेट्रिसिन का मिजाज क्या है? जी उसका सर। भी एक मिजाज तो होगा ना, एक जी मादा है ना दुनिया में। जी जी जी, सर्द मुशक्किल में खुश्क, सफरा होगी सर। सर्द खुश्क नींद आता है ना उसको वो खाने से, जी जी जी। तो वही हो जाएगा। तो अपनो बेहतरीन चीज मैं समझता हूँ किसने, धनिया है, धनिया का पानी, सफूफ किसनीसी, त्रिफल किसनीसी, सर्द खुश्क दवा दो। क्योंकि आपने वो जो चीज बताए थे, कभी कभी स्ट्रेस इंड्यूस भी होते हैं, खुजली। जी जी कुछ जी लोग नहीं क्या, कोई ऑफिस में बैठ के आते ही स्टार्ट होते कुछ तो नाक पकड़ता है, कुछ आंख से सब कुछ हरकत करते हैं। याद रखना इसका सफरा उछल रहा है डर से, यानी कि एंग्जाइटी से। कुछ तो घर से बाहर निकला तो या ऑफिस से बाहर निकला तो खांसी बंद हो जाती है। कोई आदमी से मिले, कोई स्पीच को स्टार्ट करे तो बार बार खांसते रहती है। खांसना लंग्स की वजह से नहीं है, वो एंग्जाइटी जी जी। रिलेटेड है, यानी सफरा रिलेटेड है। तो सफरा कई भी तरीके से, हम लोग ने सिर्फ सफरा भी मर्ज को, तुम, मैं हमेशा कहते हैं कि सफरा के बारे में रिसर्च करो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे, यार ये तो सफरा का काम था, अब तक मैंने उसको क्या समझ के रखी, इतनी मामूली सी मैनेजमेंट में सही हो गया। तो सफरा के बारे में, क्योंकि मैं भी तुम लोग के जैसे पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं ये बड़ा हकीम या लेक्चर ले रहे हैं, या आप लोग मेरे को सुन रहे हैं 9,000 लोग ये या 100 लोग, मुझे इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा पढ़े लिखा हकीम हूँ। मैं, मेरी समझ में जो आया, मैं तुम लोग को जैसे नर्सरी यूकेजी एलकेजी लेवल में मैं पढ़ना भी चाह रहा, वही लेवल में मैं पढ़ाना भी चाह रहा। मैं आजकल ये पढ़ रहा है कि दुनिया की हर चीज को चार की ढांचे में कैसे समोए, ये मैं रिसर्च कर रहा आजकल। हर चीज को चार चीज में अगर एक बार हमने उसको बंद कर दिया, फिर हमारे कुंजी हमारे हाथ में रहेंगे। ये इसकी तलाश में आजकल मैं मैं पढ़ते रहता, ये मैं स्टिल वही पढ़ाई रात भर करते रहता। थैंक यू। थैंक यू। सर एक बात सर आपने ये कही जॉन बहुत इनके इम्पोर्टेंट, एब्सेस एक सर एक बात जो क्वेश्चन आपने था। इसमें कही है हाँ, कि मोंटी ल्यूकास का मिजाज क्या है। दैट इज सर एक मिनट सर, इसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ। स्टीरॉइड है क्या वो? नहीं, आज आप एलोपैथ के मिजाज की अगर बुक लिख देंगे कि ये दवा इसलिए फायदा करती है यूनानी एतबार से, तो यस, सर एक यूनानी भी एक डोमिनेंट हो जाएगी कि एलोपैथ तुम्हारी 100%। दवा इसलिए फायदा कर, इसलिए अगर इसलिए डॉक्टर, पैरासीटामोल जो है बुखार उतारती है। ये सुनो मतलब हम डॉक्टर लोग, साहब, जी जी प्रॉब्लम एलोपैथी वाले को भी हम लेक्चर ले सकते हैं। एलोपैथी जी जी वाले को हम ये बोल सकते हैं, बाबा इसको पैरासिटामोल मत दो, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा। इसको 5-5 पैरासिटामोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ये जी स्टीरॉइड मत दो, इज वेरी बैड फॉर हिम, इसको स्टीरॉइड थोड़ा चला सकते हैं, इसको ये मत दो। क्योंकि हर आदमी को लोग एक ही चीज देते हैं ना, जी जी जी, सर्द ये खुश्क बहुत दवा से। इंपॉर्टेंट चीज है सर। आज हमको डब्बे में बंद कर दिया गया, ये डब्बा खुलेगा आपकी रहनुमाई में। कोई कुछ बोलना चाह रहे? सर सर पर्सपिरेशन कैसे कंट्रोल होगा सर? वो एक्सेसिव जो पर्सपिरेशन, मतलब उसकी फेस पे भी, किसी मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं उनके फेस के ऊपर इतना ज्यादा पसीना रहता है या हथेलियों में रहता है, वो यस कैसे यस, कंट्रोल कर? सब्जम नेबुलाइजेशन। एक मिनट है, अभी ये जो हिना का सवाल है, क्या बताया आपने? सर एक्सेसिव पर्सपिरेशन। एक्सेसिव पर्सपिरेशन के ताल्लुक से किताबों में अक्सर ये बताया कि ज्यादा ये नहीं, इसके अंदर हाइड्रेशन की, जिगर की गर्मी बताया, बस ज्यादा उसकी तफसील नहीं बताया किताब। जिगर की हिद्दत बताएगी। अभी आप याद रखो कि स्वेटिंग हो या आपकी बॉडी के अंदर कभी भी, एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल, आप भाग रहे जल रहे, बॉडी गर्म होते तभी स्वेटिंग होता है। जो आदमी ऑफिस में या पड़े रहते या कंबल ओढ़ के एसी में सोता है तो उसको कभी स्वेटिंग नहीं होता है। तो स्वेटिंग की वजह बहुत है, बेसिकली सफरावी को ज्यादा स्वेटिंग होता है और दमवी को भी। बलगमी और सौदावी को अगर एंग्जाइटी है या उसके अंदर समझो वसवसी कैरेक्टर ज्यादा है तो पर्सपिरेशन का चांसेस ज्यादा होता है। कभी कभी हाथ में ऐसा लगता है कि टपकता है उनका, बोलते एग्जाम के टाइम पे बहुत होते हैं, मैंने टिश्यू पेपर लेके जाते हैं, मैं रुमाल से पोंछता, या बैंक में कोई सिग्नेचर करना या कोई
वो किसी ने बोला जल्दी जल्दी लिख के दो, फिर मेरा पसीना छूटना शुरू हो जाते, मेरे जूता हट जाते मेरे पैर से, मेरे को चलने में फिसलते रहे, इतने एक्सट्रीम चले जाते। बाकी उनका कोई ऑर्गन सिस्टम सब नॉर्मल रहते। इसमें भी याद रखने का, सर्द खुश्क दवा से इलाज करो, सर्द तर से ज्यादा सर्द खुश्क। बैरूनी तौर पे आप देखते होंगे जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनी एंडिस परस्पिरेंट बोल के अपने बगल में मारने के लिए, यानी कि पसीने की बदबू को दूर करने के लिए स्प्रे बनाया। वो स्प्रे में क्या कंटेंट है? वो स्प्रे का बेसिक कंटेंट है फिटकरी, एलम, फिटकरी की पानी का स्प्रे है वो। फिटकरी क्या है? हाबिस काबिस मुजफ्फिफ, आपकी जितने भी स्किन की जो पोर, स्किन पोर वो बंद कर डालते। एक दो घंटे के लिए आप वहां पसीना ही नहीं आएंगे, लेकिन दैट इज वेरी बैड। उसके टैक्स आपको बहुत भरना पड़ेंगे बाद में। हम भी बना सकते हैं, खाली आप काम करो फिटकरी की पानी से भी दाग बोलने के, थोड़ा फिटकरी की पानी से सुबह जाने के अच्छे से दो डालो गले बगल, और जितने भी पसीना निकलता है 2-3 घंटे में पसीना ही नहीं आएंगे उधर से। ओके। बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं हो रहे, पढ़ने से पहले वो जा रहे हैं, वो टेक्स्ट मैसेज मुझे पढ़ने नहीं हो रहा, बाद में तफसील से हम बात करेंगे। हाउ कैन सब्जम नेबुलाइजर, नेबुलाइजर मत इस्तेमाल करो। सब्जम सिर्फ सब्जम को नेबुलाइजेशन के तौर पे मत इस्तेमाल करो, सब्जम को इनहेल करो ये पानी में डाल के। बहुत सारे सवाल टेक्स्ट मैसेज में आ रहा है, कुछ सब पढ़ने नहीं आ रहा, सबको जवाब नहीं दे रहा। स्किन एब्सेस जो होती हैं, अरे वो साहब, ताफुन, हेलो, हाँ बोलिए अब्दुल्ला, कौन कोई है? जी सर, बोला स्किन स्किन अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर। स्किन के अंदर डे बाय डे सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि टीनिया क्रोलिस के पेशेंट बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल। यस, लास्ट टाइम भी अपना इसके ऊपर बात हुआ था। तो यूनानी में कोई ऐसी खास ऐसा कि ये दवाइयाँ, क्योंकि कुछ पेशेंट में रिजल्ट मिलते कुछ में नहीं मिलते, इसके ताल्लुक से थोड़ा रोशनी डालिए। देखो ये बहुत बड़ा एक अच्छी बात बताया, क्योंकि मेरे को मालूम बॉम्बे में स्किन स्पेशलिस्ट कमा कमा के चमार हो गए, इतनी कमाया है, लेकिन पेशेंट कभी कभी खुदकुशी की हालत पहुंच जाती, इतनी दवा खा के थक चुकी। स्टीरॉयड रेसिस्ट हो गया, उनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्ट हो गया, एंटी फंगल काम नहीं कर रहे हैं, टीनाकॉट, माइकेनाजोल, इकेनाजोल, वो खाली टीनिया टीनिया लबा जबान। अभी प्रॉब्लम ये कि ट्रीटमेंट एक ठीक है, ट्रीटमेंट का एक पार्ट अलग है, लेकिन पहले तो देखना चाहिए मर्ज की माहियत क्या और किस वजह से मर्ज आ रहा है। अब यहां तक के कंडाल और के पब्लिक का कहना है कि ये इतनी फैल रहा है, रेडिएशन के तौर पे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग का कहना है कि साबुन की वजह से, आज जितने भी साबुन इस्तेमाल करो इतना इंतहाई किस्म की केमिकल है। कुछ लोग बोलते हैं 3G 4G 5G टावर की वजह से, ये मतलब बहुत सारे माहियत को साबित करने, लेकिन वो सब परफेक्ट अभी तक नहीं। बस इतना जानता हूं उसके अंदर खुश्की की गलबा है वो बीमारी, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत और बाउंड्री के साथ फैलता है। वो कभी कभी ऐसा लगता है सोरियासिस है, हल्का बाउंड्री के साथ पूरा एक मैप के जैसे फैलता है और ब्लैकिश कलर से पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है वो। अब वो मैंने वो क्या नाम उसके एक नुस्खा बनाया, एक सिरे दांत बोल के, उसका अंडर ट्रायल में हो, इंशाल्लाह वो सक्सेस हो गया तो आप लोग को दवा या नुस्खा मैं बताऊंगा। इट इज इन R&D। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक तो इसके अंदर एक चीज ये कि ये स्टीम बाथ, यानी कि हमाम नारी, यानी कि बुखार सेटिंग करवाना सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। पूरी की बॉडी में 10-15 मिनट की, हर जगह पर आदमी को फैसिलिटी नहीं मिलेंगी कि सबके पास वो स्टीम की फैसिलिटी नहीं रहती, लेकिन गर्म पानी के भाप से भी इस्तेमाल कर सकते, उसको कमरे में रह के एक्सेसिव सेटिंग करवाना। दूसरी चीज याद रखो, इसमें भी हमको स्टडी इसलिए चाहिए कि सफरा सौदा सब तरफ 4 मिजाजों में टीनिया का रेस्पॉन्स क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या, वो भी डिफरेंट है। और उसमें सबसे ज्यादा परेशान सौदावी लोग को लग रहा है, सौदावी को, क्योंकि अभी मेरे पास बॉम्बे से फैमिली आ रहा है। कोविड के बाद में एक बॉम्बे की फैमिली, 9 लोग, हस्बैंड वाइफ, उसकी 7 बच्चे, सबको एडमिट हुआ। अंदाजा लगा सकते कुजली से एक बॉम्बे से एक फैमिली आके कलिकट में एडमिट होना वाले तो कितना परेशान हो गए। तो उसके बारे में हम डिटेल एक दिन डिस्कशन करेंगे, उसको हाउ टू मैनेज। ज्यादातर आप याद रखो उसमें सर्द दवाई काम करेंगे, लेकिन सर्द खुश्क एक्सट्रीम नहीं जाने का। फर्स्ट डिग्री दवा से जो मुझे रिजल्ट मिला, शरबत खसखस और कुर्सकुस्ता गाउदन दी,
एंड माजुन नजा, बच्चे नजा नहीं खाते लेकिन बड़ा है तो 10, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बैरूनी तौर पे कुछ भी लगा के फायदा नहीं, सिर्फ मरहम कूबा कुछ लोगों में रिजल्ट मिला है, कुछ लोगों को मरहम काफूरी मिला। लेकिन मैं एक सिरे दाद बोल के एक बनाया, उसकी कंटेंट कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड और क्या नाम उसका अपना ग्लिसरीन और सुहागा, या आप जो हमदर्द का या कुलाई हो या अरमस का कुलानिल भी लगा के दो, उसके भी रिजल्ट मिल रहे हैं। वो अपने एक तफसील से अब मैं उसकी एक फॉर्मेट है वो बताऊंगा इंशाल्लाह, इट टेक्स टाइम। ओके, थोड़ा पानी ओके। अच्छा है माशाल्लाह, 100 जन थे आज। जरा कमेंट डाल दो कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में, का क्या क्या प्रॉब्लम थे, कुछ लोग का डाउट था वो मैं पूरा हेलो, यस अलैहिस्सलाम। तो सर जो मेरा बेटा 18 साल का है, उसको हाँ। सर सुबह उठते ही जो है गले में खुजली, जुकाम और नाक से पानी, छींके बहुत आती है और कभी कभी सीने में जो है जकड़न टाइप की बताता है सर। तो उसके लिए सर प्लीज कुछ बता दीजिए। इसको एक्चुअली हम लोग की जबान में, एलोपैथी की जबान में एलर्जिक स्नोफिलिया, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब आप याद रखो। 1 टीस्पून शरबत खसखस, जी सर। कुर्स मरजान जर वाला 1 बीडी। जी सर। इतने एज क्या है? सर 18 साल। इत्रिफल किसनी सी 1 टीस्पून एट नाइट। अच्छा सर। कैप अताश 1 बीडी, खलास। क्या चीज सर लास्ट में? कैप अताश। अच्छा अच्छा ठीक है। 1 बीडी। अगर ये आज से स्टार्ट करो, अगले संडे को इंशाल्लाह फीडबैक दो। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अनस बोलो। वालेकुम जी अस्सलाम। हाँ सर, ये कह रहे थे कि आजकल पेशेंट आ रहे हैं, यंग एज भी है और बीपी बहुत कम मिल रहा है, मतलब और लग रहा है सर सफरावी पेशेंट्स है, दुबले पतले। सफरावी बीपी कम मिलेगा सफरावी में? सफरावी में सबसे ज्यादा बीपी कम रहेंगे। उसकी वजह क्या है? हमने शायद लेक्चर ले चुके, मेरे यूट्यूब पे लेक्चर भी है। रुतूबत कम हो जाते हैं और खाली हो जाते हैं, और बीपी जितने भी सफरावी लोग का बीपी हमेशा लो रहते हैं। गुस्सा करेंगे हम लोग, गुस्सा समझ के, गुस्से की वजह से बीपी थोड़ी बढ़ता है, वो हमारा एक सोच है। वो गुस्सा वाले को बीपी बढ़ते हैं, बीपी से कभी गुस्सा नहीं होता। सफरा के वजह से ये प्रॉब्लम होता है, तो बीपी लो हो जाता है। सर इसको मैनेज करने के लिए क्या अरशद वाला खमीरा ऑपरेशन देते हैं, सर क्या दे सकते हैं? और नहीं गर्म दवा बिल्कुल नहीं, उसके लिए खमीरा मरवारी, खमीरा मरवारी, जवारी शाही एंड मशरूब आमला। अच्छा ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं डॉक्टर फरहान। सिरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट्स में ये कोविड के केसेस ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, एंड फ्रॉम द ब्लड प्यूरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों में भी कोगुलेशन प्रोफाइल जो है पीटीएनआर बहुत हाईली एलिवेटेड रहता है। तो इसका मुसफ़ियात से क्या रोल है सर? यहाँ हम मुसफ़ियात का इस्तेमाल। यस सुनो, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो फाइब्रोसिस हो या समझो कई जगह पे रुतूबत कम होना या फाइब्रोसिस के तरफ जाना या सिरोसिस, एक उसके पीछे भी एक फिजिक्स है वो, यानी कि सॉलिडिटी की तरफ या खुश्की की तरफ जाना सौदा का दखल है। सौदा एकाएक सौदा नहीं बनते, सौदा या तो कोई चीज की एतराक के वजह से होते, सफरा के एतराक से भी सौदा होते हैं, बलगम की एतराक से भी, दम के एतराक से भी सौदा ही बनता है बेसिकली। जैसे अभी क्रॉनिक कोई भी इन्फेक्शन उठा के देखो, सब में ESR बढ़ा रहता है, जैसे टीबी हो, मलेरिया, सब चीज में ESR बढ़ा रहता है, क्योंकि वो मुसलसल उसके वजह से एक एतराक बॉडी में होता है। उसी तरह की तिलचट जो तैनशीन होते हैं उसको हम ESR के नाम से जानते। यहाँ भी जो क्लॉटिंग फैक्टर हो या जो कोएगुलेशन फैक्टर बढ़ने की वजह, कहीं ना कहीं सफरा की तोड़फोड़ की वजह से इस तरफ रुतूबत की तरफ कम होकर यबूसत की तरफ गया। तो यहाँ हम मुसफ़ियात के तौर पे इस्तेमाल, कभी ये नहीं कि हमने डायरेक्ट अच्छे से लीवर में इन्वॉल्वमेंट है, अब पे कभी नौशादरी गरम दवा बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। इसमें या तो मुतदिल दवा दो या गरम तर दवा दो। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है जिस दवा में गुलाब यानी वर्द का मिकदार ज्यादा, उस पर काम करो। वो बेहतरीन मुसफ़ियात है। कौन सी? गुलाब के मिजाज के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ तक कि रूह का भी इत्तिदाल में लेके आते हैं।
रूह का भी तादील करते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के गुलाब बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये रूह को भी ट्रैंगुलेजर का इफेक्ट करते। कुछ जगह पे मुरक्कबुल कवा लिखा है किसके, गुलाब के मिजाज, कुछ जगह पे गरम तर फर्स्ट डिग्री लगा, कुछ लोग सर्द लिखा, मतलब बहरहाल वो मुतदिल मिजाज के करीब है इसकी खुशबू और उसकी क्वालिटी। इसलिए अक्सर जो देबीदुल वर्द की जुज़े आज़म जो है ना वो है, वो अगर सपोज हमने आपको और मजीद आपको रिजल्ट लाना है इस डिजीज के लिए, आपको सबसे बेहतरीन दवा है गुलकंद। गुलकंद दो किस्म की गुलकंद आते हैं, गुलकंद आफ्ताबी और गुलकंद मेहताबी। गुलकंद मेहताबी चांद का मिजाज क्या है, बलगम यानी ठंडा, और सूरज का मिजाज क्या गर्म है। तो गुलकंद मेहताबी खिलाओ तो ये प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। गुलकंद इजीली बना सकते हैं, इसकी इजीली तरीका है, आप क्लासिकल किताब पढ़ो, अच्छे गुलाब लेके आओ, उसके साए में सुखाओ, उसके अंदर चीनी रख के, विदाउट पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कांच की बोतल में रख के उसको धूप में रखो, 10-15 दिन के अंदर गुलकंद तैयार हो जाएंगे। ये मुकव्वी आसाब भी है, सॉरी मुकव्वी दिमाग भी है, सॉरी मुकव्वी मैदा है, मुकव्वी जिगर है, मुकव्वी कल्ब है, और साथ साथ में क्लॉटिंग फैक्टर में जो तब्दीली हुआ जिसके अंदर कोई, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये। दूसरा शरबत उन्नाब, इसके लिए एक बेहतरीन ये है। दूसरा शरबत नीलोफर एंड शरबत बनफशत, ये सब चीज आपने जो बताया उसमें काम करेंगे। डोंट गिव हार खुश एंड सर्द खुश दवा ज्यादा। ओके जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। जो स्किन एब्सेस होते हैं, स्किन एब्सेस, वो ताफुन के, हेलो सर सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। उसमें ताफुन की वजह से होता है या सफरा का गलबा की वजह से जो रिपीटेड स्किन एब्सेस होते हैं? किसमें स्किन एब्सेस होते हैं सर? स्किन एब्सेस में बेसिकली ताफुन। अच्छा, तो हम उनको सर्द खुश्क दवाएं दें? एग्जैक्टली, सर्द खुश्क अंदरूनी और सर्द बैरूनी। ओके सर, क्यों जैसे याद रखो, उस पेशेंट को थोड़ा सर्दी का भी गलबा, जैसे आस्थमा वगैरह जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको क्या करो, सर्द तर मत दो। ओके सर, तरी से अस्थमा होता है, कुछ सर्द से नहीं। याद रखो, सर्दी से अस्थमा नहीं होते, सर्द तर से, समझा? सर्द हमेशा एक साथ नहीं रहते, सर्द खुश्की और सर्द तर भी याद रखना। अगर किसी ने बात किया सर्द, तो ये एक सवाल पूछो उसके साथ में कौन जोड़ी है, जोड़ुआ कौन है, सर्द खुश्की के सर्द तर है क्या, तभी हम उसकी आदत तरीके, उसकी फितरत बता। सिर्फ सर्द से हम फितरत नहीं बता सकते। एक आदमी बोला मैं सर्द आदमी हूँ, मेरे बाजू में एक सर्द खुश्क भी बैठे, एक सर्द तर भी बैठे, दोनों का मिजाज में चलो ठीक है सुकून तो रहेंगे सर्दी की, लेकिन मजीद आपको इसको फितरत बताने के लिए उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ बताना जरूरी है। तो यहाँ आपको अगर अस्थमा है तो उसके अंदर बलगम है तो सर्द तर की शिकायत, अस्थमा नहीं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है तो खुश्की की वजह से, वो हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी दवा मैं इस्तेमाल करूँ। आई होप यू सेटिस्फाइड विद माय। जी सर, जैसे ये पेशेंट को भी हम खशखश वो और गोदम्बी इस तरह के, सर इनके मैदे का किस तरह से ये करे कि जैसे जिगर की हरारत और मैदे की, जिगर की हरारत और मैदे का जो करते हैं हम लोग, उसको कैसे? मैदे में कुछ नहीं, ज्यादातर याद रखो कोई भी स्किन डिजीज आन दो उसमें एक मुलय्यन दवा जरूरी है। बहुत सारे खास तौर से दम्मी और बलगमी स्किन डिजीज में मुलय्यन अच्छा काम करता है। अगर समझो बलगमी है बीमारी और सफरा भी है यानी खुश्की, उसमें ज्यादा इस्तिफराक मत किया, उसमें खुजली बढ़ता है, रुतूबत ज्यादा है, पेशेंट की इम्तिला ज्यादा लग रहा है, फूले फूले बड़े बड़े हैं, तो उस पर इस्तिफराक की जरूरत है। थैंक यू। ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर keloids lies under which category sir? Sir keloids sir, even surgeries are not successful, rather they further increase the size of the keloid. डॉक्टर साहब कीलोइड बेसिकली एक हाइपर ग्रोथ है, वो भी सबको नहीं होता है। अक्सर किसको देखते हैं जो जिसको बाईपास सर्जरी किया सीने पे, वो स्टिचिंग के ऊपर इतना बड़ा मतलब एक ऐसा लग रहा है कोई बंद बांधा हुआ है। कुछ लोग ज्यादातर जलने के बाद में जो स्कार फॉर्म होती है उसके ऊपर एक हाइपर ग्रोथ होता है। कीलोइड एक्चुअली एक ग्रोथ है, वो स्किन डिजीज नहीं है, वो इतना ग्रोथ हो जाते हैं उसमें जितना हम टच करेंगे कुजाएंगे उतना वो बढ़ता है।
उतना वो बढ़ता है। तो बेसिकली उसको सूदिंग इफेक्ट दो, उसको समझो काफूर दो या कोई भी जैसे रुतूबत दो, यानी खुश्की ना हो। क्योंकि मुझे 10 बजे ये है एक क्या नाम उसका, एक वर्कशॉप है 9:56 तो ताड़ी उसमें कोई तेल वगैरह लगाओ। हम लोग नेक्स्ट क्लास का कंटिन्यूस करेंगे। कुछ बोलना चाह रहा है अलाउद्दीन शायद कुछ प्रोडक्ट के ताल्लुक से। 4 मिनट बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक जो है ना अभी इधर आधा रखा, इसका टॉपिक कंटिन्यूस करेंगे सेकंड पार्ट बोल के। हाँ सर।